It's such a privilege and joy to be part of what God is doing in our midst at the end of this year. और इस साल के आखिरी दिनों में परमेश्वर जो हम सबके मध्य में कर रहा है उसका भाग बनना मेरे जीवन का एक सौभाग्य मैं समझता हूं। Thank you, Pastor Philippos. Thank you, Pastor Santosh and Pastor Keo Verghese, and all the servants of God has joined this evening, and especially Brother Alex for taking us to a wonderful time of worship where we could enjoy God's presence in a beautiful way. और तमाम प्रभु के दासों को विशेष करके भाई अलेक्स को आराधना में हमारे अगुवाई करने के लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। And I'm so thankful to the Lord as families, individuals, you are sitting in your homes expecting great power of God to be manifested today in your own personal lives. और विशेष रीति से अपने अपने घरों से अपने परिवारों के साथ में आप जुड़े हैं इस बात की बाट जोहते हुए कि पवित्र आत्मा का एक नया कार्य, एक अद्भुत कार्य हम सबके जीवनों में आज रात को प्रकट होने पाए। In the traditional Christian church, in the calendar, it is said that this is the season of Advent, the coming of His presence. और पारंपरिक मसीही कलीसियाओं में यह जो मौसम होता है, ये जो सप्ताह होता है, ये एडवेंट का मौसम के रूप में माना जाता है कि आगमन की तैयारी के लिए लोग उसकी बाट जो होते हैं। And I believe that a new and a fresh coming the Lord is bringing into our own homes, our own ministry, and our own future. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे भविष्य में एक नए आयाम के अंदर हमें इन दिनों में ले जाना चाहता है। And this coming is an encounter. This coming is there is a purpose that's been destined. There is a thing that God is placing before us. और मैं विश्वास करता हूं कि यह आगमन, यह जो नयापन, नई मुलाकातें मेरे और आपके जीवन में नए गंतव्यों में, नए लक्ष्यों में मुझे और आपको स्थापित करने जा रही है। As I mentioned yesterday, in our theological thinking, somehow we have placed, chapter 3 of Genesis, where the head of the serpent will be destroyed, Jesus Christ. Yes, Jesus is the center, but at the same time, the hovering of the Spirit is always, kept under our own theological understanding. और आज आम तौर पर जो हमारी आध्यात्मिक सोच के अंदर उत्पत्ति 3 अध्याय में जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह शैतान के सिर को कुचलेगा, वो सारी बातों को हम प्राथमिकता देते हैं, लेकिन आत्मा का जो चलन है, आत्मा की क्रियाशीलता है, कई बार उसको हम द्वितीय दर्जे में रखते हैं। Many times unknowingly we assume that Old Testament is the Father God, Jesus, New Testament is Jesus Christ, and then now the Holy Spirit is working. Somehow we have put that into our mindset. और भूलवश हम सबके दिलो दिमाग में एक चित्रण इस प्रकार से कि पुराने नियम के अंदर पिता परमेश्वर है, नए नियम में पुत्र यीशु मसीह है और इन दिनों में पवित्र आत्मा है। इस प्रकार से 3 भागों में हमने उसे विभाजित कर रखा है। From the first verse to the last verse of the Holy Bible, the working of the Father, Son, and the Holy Spirit moves along strongly and powerfully. और बाइबल के पहले पुस्तक उत्पत्ति से आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य तक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का सामंजस्य और उनके कार्यों को हम समझ सकते हैं। And this evening, I just want to highlight the work of the Spirit in the Old Testament and its connection to the New Testament, so that we will be equipped to the purposes in which God has called us, and will accomplish and see that in the coming days. और आज की शाम पुराने नियम के अंदर पवित्र आत्मा के कार्य करने के तरीके को और किस प्रकार से वो पवित्र आत्मा का कार्य नए नियम के या नए वाचा के युग के साथ में जुड़ा हुआ है, उन बातों की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। For us as Pentecostal believers, Joel chapter 2 verses 28 is very important, and particularly when it's been quoted by Peter. और विशेष करके हम जो पिंतकुस विश्वास के लोग हैं, हमें योएल 2 अध्याय उसका 28वां पद, चूंकि पतरस ने पिंतकुस के दिन उसका उद्धरण किया था, इसलिए हम उसे अधिक महत्व देते हैं। Yesterday I was covering the importance of the work of the Spirit and the coming of the Spirit in Joel's prophecy. The situation was bad, and how the Lord has sent His Spirit. और
कल रात को हमने वचन के अंदर से सीखने का प्रयास किया था कि कैसे योएल के उन दिनों में जब समस्या का माहौल था, दुविधाओं का माहौल था, ऐसे समयों में आत्मा के उंडेले जाने के बारे में योएल नबी नबूवत करता है। उस विषय को हमने कल सीखा था। He also mentioned that in the prophecy, one part is missing. The priest who was supposed to receive the blessing is not mentioned in the promises in chapter 2. और दूसरे अध्याय के अंदर जो सांसारिक आशीषों के बारे में कहा गया है, उस पूरे वर्णन के अंदर याजक के बारे में नहीं बताया गया है कि याजक को कौन सी आशीष मिलने वाली है। There we see a shift in the understanding of the Spirit, where the priests whose ministries were based on performance and offerings has stopped, and to be released into prophetic ministry and encounter based ministry, and that is what the Lord was doing by the promise of Joel. और जो हम यहां पर देखते हैं कि याजक का जो कार्य एक रीति रिवाज को पूरा करना या कुछ बातों को अदा करना, उस अदाकारिता के अवस्था से एक बड़ा ही रूपांतरण, एक स्थानांतरण मानो नबूवती सेवकाई के लिए, वह बदलाव हम यहां पर योएल की पुस्तक के अंदर पाते हैं। And this evening, God willing, I would like to pick up Ezekiel as an example for that. और आज प्रभु की इच्छा हुई तो यहेजकेल को उसके एक उदाहरण के रूप में मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा। And also I mentioned that in the encounter, don't figure out, but the power of the resurrection, the spirit that raised Jesus up, is an unlimited power that is available for us in our Christian life. प्रियो, कल मैंने आपको समझाया था, इन मुलाकातों में आपके पूर्वानुमानों के आधार पर एक आंकलन करके हमें नहीं बैठना है, लेकिन चूंकि वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, एक अद्भुत और एक नएपन की बाट हमें हमेशा जोहनी है। And I also mentioned that don't pull the poles of the Ark of the Covenant. It is kept to carry the presence of God. So keep that in mind as we encounter God's presence. और कल रात मैंने यह भी आपको बताया था कि परमेश्वर के संदूक के अंदर से जो उसके हत्थे हैं, उन हत्थों को आपको हटाना नहीं है, उन हत्थों को वहां पर बनाए रखना है। इस बात को आपके दिमाग में बनाए रखे जब हम इस विषय को आगे सीखने जा रहे हैं। The third thing that I want to look at today is from Ezekiel chapter 37, verse 1 to 14. It's a very familiar passage where the dry bone valley, where God's Spirit works, breathes, and bring forth life into situations. और आज शाम के समय में आपका ध्यान यहेजकेल उसके 37वें अध्याय को ले जाना चाहूंगा। एक सुपरिचित अध्याय है जहां पर सूखी हड्डियों की तराई में यहेजकेल प्रभु के श्वास को वहां पर फूंकता है। What is encounter? Encounter is an image imprint of God's power on your life in a very clear way. और एनकाउंटर या वह मुलाकात, उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर की स्वयं की छाप, उसकी प्रतिमूर्ति मेरे और आपके जीवनों के अंदर जब छप जाती है, उसको हम मुलाकात कहते हैं। Exactly what we learned from the life of Ezekiel. यहेजकेल के जीवन में हम वही देखते हैं। And in the chapter, it begins like the hand of the Lord was upon him, and he placed me in the midst of a valley of dry bones. और वहां देखते यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। And the breath comes, it will bring life, it will bring attaching the tendons, if the flesh is coming together, skins coming together, then it stands up. And that is the process in which God's bring life to the bones that are dry in that valley. और हम देखते कि उस तराई में जो सूखी हड्डियां थी, उन सूखी हड्डियों में जब प्रभु का दास भविष्यवाणी करता है, उन हड्डियों में प्रभु सांस को समाता है और उसके बाद नसें उपजाता है, मांस को चढ़ाता है, चमड़े से उसे ढांपता है और उसके बाद उन्हें एक जीवित सेना के रूप में खड़ा कर देता है। God's Spirit is working on bones. परमेश्वर की आत्मा हड्डियों में कार्य कर रही है। Hallelujah. हालेलुया। Bones have an important
purposes in the scripture, in the Old Testament, in the scripture. और हड्डियों को पुराने नियम में या पुराने नियम के पुराने कलाम के अंदर एक महत्वपूर्ण कार्य हड्डियों का बताया गया है। Whenever the Bible speaks of bone, it always speaks, mostly it speaks of destiny and a promise that is waiting, that is yet to be fulfilled. और वचन में जहां में पुराने नियम में हड्डियों के बारे में वर्णन किया गया है, वह एक गंतव्य के बारे में बताती है, एक ऐसा वायदा जिसे पूरा होना है। Metaphorically, it speaks about a hope of God's promise and that is waited to be fulfilled. और चित्रात्मक रूप में हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, परमेश्वर का एक वायदा जो अभी पूरा होना बाकी है और जिसकी बाट जो ही जा रही है। Let me draw your attention to Genesis chapter 50, verses 22 onwards. It talks about Joseph's last days. और उत्पत्ति उसके 50वें अध्याय और उसके 22वें पद की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। वहां पर यूसुफ के आखिरी दिनों के बारे में वर्णन है। This is the story of Israel, the redemption of Israel, and Israel is delivered from Egypt. और इज़राइल के छुटकारे के बारे में, मिस्र में इसके दासत्व के, मिस्र की गुलामी से इज़राइल को छुड़ाए जाने के बारे में यहां पर लिखा गया है। Before it happened, many hundreds of years ago, there is a prophecy that Joseph places and says that the Lord is showing me that he is going to take me up. And when I am taken up, when you go up to the promised land, don't miss, or please take my bones to the promised land. और हम देखते हैं कि यूसुफ वहां पर उन लोगों से नबूवती आत्मा में एक बात कहता है, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकाल कर उस देश में पहुंचा देगा। और वह कहता है, जब वो होगा तब तुम इस बात का ध्यान देना कि मेरी जो हड्डियां हैं, उन हड्डियों को भी तुम उस देश में लेकर जाना। And we know that Joseph is making a promise. He is asking them a swear and oath to say that when God will come to aid you, you must carry my bones from this place. और उसके 25वें पद में यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहां से उस देश में ले जाएंगे। So when the Passover, when Moses enters to the scene and when God delivers people from the plague and from Egypt through Passover, and they are on the way to the promised land. और हम देखते हैं कि जब मूसा के नेतृत्व में फसह मनाने के बाद में वे लोग मिस्र की गुलामी से बाहर निकलते हैं, लाल सागर को दो भाग करके निर्जन प्रदेश से होते हुए प्रतिज्ञा के देश की ओर जब वह कारवां आगे बढ़ता है। Do you know what went first before Moses and Aaron as they proceeded from Egypt? क्या आपको मालूम है मूसा और हारून से पहले कौन सी बात थी, कौन सी वस्तु थी जो आगे आगे चली थी? 4 people carrying a coffin with the bones of Joseph. Hallelujah. 4 लोग जो एक अर्थी को, एक संदूक को जिसमें यूसुफ की हड्डियां थी, उन्हें लेकर चल रहे थे। Joseph was prophetically seeing his presence. The bones will even reach to the promise which God has given to his father Abraham, Isaac and Jacob to be fulfilled. And even if he dies, even if the bones are separated, I know that God will take me there. प्रियो, यूसुफ नबूवती आत्मा में एक बड़े वायदे के पूर्तिकरण की ओर देख रहा था, जो परमेश्वर ने उसके पुरखाओं को, अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को दिया था। और वह कह रहा था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, साल बीत जाएंगे, लेकिन मेरी हड्डियां उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचेगी और वह नबूवत निश्चय पूरी होकर रहेगी। If God has said it, he will do it. यदि प्रभु ने कहा है तो निश्चय वह उसे पूरा करेगा। Imagine those 4 people as they were lifting the coffin, the bones of Joseph, they were entering into the hope
and the promise that God has given to Abraham. प्रियो, आप जरा याद कीजिए, जब वे चार लोग उस संदूक को जिसमें यूसुफ की हड्डियां थी, जब उसको उठा रहे थे, वहां पर वास्तविकता में क्या हो रहा था? परमेश्वर ने अब्राहम को जो वायदा दिया था, उस वायदे के अंदर यूसुफ की हड्डियां प्रवेश कर रही थी। No matter what we go through now, if God said He will do it, He will take your bones today, and it is a promise to your bones that He will accomplish His task. प्रियो, आज वर्तमान में आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, लेकिन एक बात निश्चय है कि यदि परमेश्वर ने कोई वायदा किया है, तो वो वायदा आपके जीवन में पूरा होकर ही रहेगा। You may be carrying many bone-like situations in your lives. आपके जीवन में अस्थि नुमा, हड्डी नुमा कई परिस्थितियों को लेकर आप चल रहे होंगे। No tendons, no flesh, no skin. You don't know which connects what. You are going through such situation, and the Spirit of the Lord is saying, if I have promised you, I will carry it through and I will do it for you. प्रियो, केवल हड्डियां हैं, नसें नहीं है, मांस नहीं है, चमड़ा नहीं है, जीवन नहीं है। ऐसी अवस्थाओं में कौन सी हड्डी कहां पर जुड़ी है, इसका भी कोई अंदाज नहीं। लेकिन प्रियो, जब आप उसे लेकर चलते हैं परमेश्वर के वायदों के पूर्तिकरण की ओर, आप अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाते हो। Bones हड्डियां, represent the destiny, the hope, the promise that is waiting to come. और हड्डियां उस गंतव्य को, उस वायदे को जो प्रभु आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है, उसका प्रतीक है। Another bone story, 2 Kings chapter 13 verse 21. दूसरा राजा उसका 13वां अध्याय और उसके 21वें पद में दूसरे हड्डियों से जुड़ी हुई एक बात को हम देखते हैं। An interesting factor, an anonymous man whose bones touches prophet Elisha's bones. He comes back to life, stand up and raised up. और दूसरा राजा उसका 13वें अध्याय और उसके 21वें पद में हम इस प्रकार से देखते हैं, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे, अनजान मनुष्य था, कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलिशा की कब्र में डाल दिया और एलिशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। God gives voice to a dead man. God gives life to a dead man through a dead prophet's bone. आप देखिए, परमेश्वर एक मृत शरीर में जीवन फूंकता है, एक मृत शरीर को जीवित कर देता है, जब एक मृत भविष्यद्वक्ता की हड्डियों से वह शरीर स्पर्श करती है। Even though Elisha's bone was rotten away, it was on a public place, no fanfare, no special shrine was made for him, but God knew someone will die when the Moabites come to attack, and God will raise someone up to fulfill his destiny, because he was not supposed to die early. आप देखिए, एलिशा की हड्डी जो सूखी अवस्था में थी, कोई बहुत बड़ा सजा हुआ धजा हुआ कब्र उसका नहीं था, सामान्य रीति से वो कब्र पड़ा हुआ था, लेकिन उस कब्र में, उस सूखी हड्डी में परमेश्वर की ओर से जब मोआबी दलों का आक्रमण हो रहा था, वह व्यक्ति जो मारा गया था, उस व्यक्ति की नीति वहां पर छिपी हुई थी और परमेश्वर उस हड्डियों के स्पर्श के द्वारा उस मृत व्यक्ति को जीवन प्रदान करता है। No one knows about his name. We don't know anything about his name, but we only know that, he died, but now he is risen up to continue what God wants to accomplish his life. हमें उसका नाम नहीं मालूम, वो कौन था क्या था हमें नहीं मालूम, लेकिन हम एक बात जानते हैं, उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन भविष्यद्वक्ता की हड्डियों के स्पर्श के द्वारा वो पुनर्जीवित हो गया और अपने जीवन के उद्देश्यों के अंदर वो आगे बढ़ सका। Bones are important because it directs your destiny. Even if it is delayed, God will accomplish it. प्रियो, हड्डियां महत्वपूर्ण हैं, विलंब हो सकता है, देरियां हो सकती है, लेकिन परमेश्वर निस्संदेह अपने मंजिल को पूरा करेगा, अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। And in chapter 37 of Ezekiel, this is what we see again. It is not one bone or one man's bone.
it's a full valley fully covered with dry bones. और यह स्केल 37वें अध्याय में एक व्यक्ति की हड्डियां नहीं, लेकिन पूरी तरह सूखी हड्डियों से भरी हुई है, ऐसा हम देखते हैं। We see that what is happening there, hundreds and thousands of Jewish people have been taken by Nebuchadnezzar to the land of Babylon. और हम देखते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहूदी लोगों को राजा नबूकदनेस्सर ने बाबुल की गुलामी में, दासत्व में वो लेकर चला गया था। In the first chapters of Ezekiel, we see that a group of remnant, even Ezekiel, sits at the canal, at the Kebar river, and pleading and praying and waiting to see something different happening in their lives. और यह स्केल दूसरे अध्याय के अंदर हम देखते हैं, यह स्केल और उसके अन्य साथी जिन्हें बंधुआई के अंदर ले जाया गया था, ये सारे लोग बंधुआई में प्रवास के देश में केबार नदी के तट के ऊपर मिलकर एक अद्भुत और एक नए कार्य की बाट जोह रहे हैं। One of the very interesting factor that you need to remember is that, Babylon doesn't have rivers. Babylon has only canals because the kings of that time, they channeled, canals from Euphrates and Tigris and connections which will reach even to Mount Zion. That's some of the scholars would say that. So the water that proceeds through these canals have a connection to the land of Israel. और हमें यह समझना है कि बाबुल के उस भूमि के अंदर नदियां नहीं थी, लेकिन वहां पर उनके राजाओं ने नहरों को बना रखा था, और ये नहरें अन्य जो फरात नदी है, अन्य जो नदियां हैं, वहां से पानी को लेकर इन नहरों के माध्यम से बाबुल के प्रदेशों में जाया जाता था, और ये जल का एक संबंध कनान के साथ में था। One of the important things that you need to remember is that in the Babylonian exile, there were thousands of Jews, but only a remnant who were carrying the presence of God, always wanted to be touched by God, encountered by God. देखिए, बाबुल में प्रवास के अंदर बंधुआई में कई हजारों यहूदी लोगों को लाया गया था, लेकिन उस बड़ी भीड़ में से एक छोटा सा समूह था जो चाह रहा था प्रभु की उपस्थिति को, और प्रभु के नए कार्य की बाट जोहने वाला एक छोटा सा समूह था। There is no priest around. There is no place to work. There is only one thing: they can raise up their hands and pray. They can have the clean hands and pure heart to pray before God. That's all they have. उनके पास में याजक नहीं, उनके पास में आराधनालय नहीं, जो वो कर सकते हैं वो अपने हाथों को उठाकर अपने मनों को प्रभु के सम्मुख समर्पित करके प्रभु की बाट जो हो सकते हैं, प्रभु को पुकार सकते हैं। And some of the scholars would say that why they settle near the river is that whenever you see the river, by the rivers of Babylon, when you hear that voice, it reminds them about the worship in temple. It reminds them of the water that flows from under the temple. That is, again, we see where the water rising up, the flooding up, where people, we see that in chapter 40 onwards, 47, I think, where the place God is taking the person into the water where he is filled and completed under the water. और कई बाइबल के ज्ञानी लोग इस प्रकार से कहते हैं कि ये लोग जो यहूदी थे और नहर के तट पर बैठकर आराधना किया करते थे, उन बातों को स्मरण करते थे जब वे यरूशलेम में थे और वहां पर प्रभु के भवन के अंदर आराधना करते थे, और मंदिर की डेवड़ी से जब जल पसीज पसीज कर बहता था, उन बातों को याद करते हुए, और उस चित्रण को जो यहेजकेल 40वें अध्याय के अंदर कहता है, जहां पर पानी धीरे धीरे बढ़ता हुआ इस कदर वो बढ़ जाता है कि वो तैरने योग्य हो जाता है, उन बातों को स्मरण करते हुए ये नहर के तट पर प्रभु की महिमा किया करते थे। So Ezekiel is sitting with this dislocated, disoriented, transplanted people who is away from God's presence, and with an expectation, one day an encounter is going to happen. देखिए, यहेजकेल एक ऐसे जन समुदाय के साथ में जो अपने निज स्थान को छोड़कर प्रवास के अंदर थे, जो अपने आप में एक उजाड़ की अवस्था में थे, सबसे अलग थलग करके रहने वाले लोगों के साथ में रहकर एक मुलाकात की बाट जोह रहा है, जो किसी न किसी दिन उनके जीवनों में आएगी, उसकी वो बाट जोह रहा है। But very importantly, we need to remember about the life of Ezekiel himself.
और यहेजकेल के जीवन के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। It is believed that he is on his 30th birthday. और ऐसा माना जाता है कि 30 साल की उम्र थी उस समय। He was born in a priestly family. He was trained as a priest under the Aaronic line in which he was born. और वह एक याजक के परिवार में पला बढ़ा था और हारून के उस पीढ़ी के अंदर, उस क्रम के अंदर वो अभ्यास करके वो उस रीति तैयारी पाया हुआ व्यक्ति था। The temple is destroyed. His future ministry is destroyed. Everything that he was prepared was lost. आप देखिए, आराधनालय वहां नहीं रहा, सेवा के लिए अब कोई स्थान उसके पास में बचा नहीं। जिन बातों के लिए वो तैयार हुआ था वे सारी बातें उससे छिन गई है। ऐसी अवस्था में खड़ा है वो। And in the Jewish Levitical system, at the age of 30, you will get your ordination. और यहूदी रीति रिवाज के आधार पर 30 साल की उम्र में उनको ऑर्डिनेशन मिलता है, उनके सेवकाई के लिए उन्हें अधिकृत किया जाता है। He may be waiting for that ceremony of ordination. हो सकता है वो उस ऑर्डिनेशन की बाट जोह रहा होगा। But his training doesn't determine the office and the anointing that the Lord is about to place upon him. लेकिन प्रियो, वो जिस रीति से उसने अपने आप को तैयार किया था, जिस रीति से वो अभ्यस्त हुआ था, वे कोई भी बातें इस बात को निर्धारित नहीं करती है कि परमेश्वर का आत्मा उसे किस गहराई में, किस स्तर में उसे इस्तेमाल में लेना चाहता है। God may say to you, I want you to be trained in one thing, but I will release you to the another thing. और परमेश्वर कहता है, मैं एक चीज के लिए तुझे तैयार करूंगा, लेकिन दूसरी एक बात के लिए मैं तुझे इस्तेमाल में लूंगा। I sense that in the crowd, those who are listening, there are certain things that you are trained for right now. You will end up in a different anointing where his presence will be greater and you will then know where to go. प्रियो, पवित्र आत्मा आज रात को कुछ लोगों से व्यक्तिगत रीति से बातचीत कर रहा है। हो सकता है कुछ कार्यों को करने के लिए विशेष दक्षता, विशेष महारत आपके जीवन के अंदर होगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन की दिशाओं को बदलकर कुछ नए कार्यों को, कुछ अद्भुत कार्यों को करने के लिए इस मौसम में पवित्र आत्मा स्वयं आपको तैयार करने जा रहा है। A priest performing and collecting offerings and sacrifices, that may be the things that you have been trained for. But it is the prophetic realm, it is the heavenly realm, it is those things that you are about to see is what God is directing you. एक याजक का कार्यशैली लोगों को एकत्रित करना, दान इकट्ठा करना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है वह दौर समाप्त हो गया। अब एक नबूवती सेवकाई का दौर आ पहुंचा है, जहां पे प्रभु से सुनकर हमें लोगों के सामने प्रभु की आवाज के रूप में, प्रभु का मुखपत्र के रूप में हमें इन दिनों में खड़ा होना है। Another important thing about Ezekiel is that he doesn't have the grandeur of the temple of Solomon to perform, but he is now sitting with the dislocated and the marginalized. He is not in the center where we expect the power of God to work, but God starts in a different location, on the corner, on the ghettos, on the outside the city. That's where the presence of God is moving. प्रियो, यह स्केल सुलेमान ने जो आराधनालय बनाया था उसकी भव्यता से, वो जो आराधनालय जो यहूदियों का केंद्र बिंदु था, वहां से काफी दूर एक ऐसे समूह के बीच में जो निराशा में है, जो आशाहीन है, ऐसे समूहों के बीच में बैठा है और प्रभु के कार्य की बाट जोह रहा है। If you remember the Pentecostal history, you will remember about Pastor Arulapan. The prophet Arulapan in Tirunelveli was a small, tiny person. The God's presence fell there, not because of its centerness of things, not because it was the Jerusalem of spirituality, but because it is where the Spirit wanted to move and the power went there, and that became the center of God's move. प्रियो, दक्षिण भारत में पिंतेकुस्त इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं, एक साधारण सा प्रभु का दास जिसका नाम अरुलप्पन था, उसके द्वारा उसके जीवन के ऊपर परमेश्वर का साधारण कार्य प्रकट हुआ। वह केंद्र बिंदु में नहीं था, वह एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व
नहीं था, वह किसी भी रीति से महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था, लेकिन एक साधारण से व्यक्ति जिसके अंदर एक चाहत थी, उसके जीवन के द्वारा प्रभु ने आत्मा का एक नया कार्य दक्षिण भारत के अंदर आरंभ किया था। Think about Pandit Ramabai in Pune. Look at those little children in that orphanage, in the children's home. God didn't look at the cathedral, but He rather looked at the people, at the marginalized, dislocated in situation. And this evening, this same God and the Spirit of God is speaking to you directly wherever you are sitting. प्रियो, पूना के अंदर पंडित रमाबाई के मुक्ति उस मिशन के अंदर, वहां पे अनाथालय में जो बच्चे थे, प्रभु का आत्मा उनके ऊपर आ गया। किसी बड़े भव्य इमारतों के ऊपर नहीं, कलीसिया भवनों के ऊपर नहीं, लेकिन उन बच्चों के ऊपर जो अनाथ थे, जो सुख सुविधा से दूर थे, लेकिन उनके अंदर एक चाहत थी, और इसलिए प्रभु का आत्मा उन पर उतर आया। इन दिनों में भी पवित्र आत्मा कुछ ऐसा ही कार्यों को करना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। What made Ezekiel to think that what I was trained for is not what he is releasing me? वह कौन सी बातें थी जिसने यहेजकेल को सोचने के लिए मजबूर किया कि जिन बातों को करने के लिए मुझे अभ्यस्त किया गया था, अब मुझे अलग एक कार्य के लिए प्रभु मुझे भेज रहा है। वह कौन सी बात थी जिससे यहेजकेल समझा? Only when you read the first chapter of Ezekiel, the complete, you will understand the story. और यहेजकेल पहले अध्याय को यदि आप पढ़ोगे, आप उस बात को समझ पाओगे। Here we see in the first, few verses, he sees an ordinary cloud being formed when the northern wind, when the wind comes and built it up. और हम देखते हैं उसके पहले अध्याय में जब आंधी चलती है, बादल घटाएं वहां पर छा जाती है। And the first wind brings the cloud. There's another cloud is coming. As it approaches, as it comes in, there is brilliant lights coming. The metals like glowing, the fire and the living creature. There is something that is bigger that is come in the ordinary situation. और हम देखते हैं चौथे पद के अंदर, पहले अध्याय के अंदर, वहां यहेजकेल कहता, जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूं कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है। घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। आरंभ में साधारण सी या सामान्य से दिखने वाली बात थी, लेकिन देखते देखते एक असाधारण बात वहां पर प्रकट हो जाती है। It is colorful, it is splendor, 4 faces, 4 wings. It is totally different. And on the throne, he sees this one thing, somebody like the Son of Man, seated on the throne. और हम देखते हैं कि उस साधारण से दिखने वाली उन परिस्थितियों के मध्य में वह एक असाधारण दृश्य को देखता है। वह 4 जीवधारियों के समान कुछ को देखता है, अलग अलग मुखों को देखता है, और देखते देखते सिंहासन के ऊपर मनुष्य के पुत्र के तुल्य एक दर्शन को वह पाता है। Son of Buzi, Ezekiel, as he sees the Son of God, he had abandoned the idea of being a priest. देखिए, बूजी का पुत्र यहेजकेल जब उसने परमेश्वर के पुत्र का दर्शन पाया, उस मुलाकात ने उसके जीवन के अंदर उसके गंतव्य को स्थापित कर दिया, और उसने उस समय ठान लिया, अब मैं एक सामान्य याजक के समान अब मैं जीवन नहीं व्यतीत कर सकता। Now he is going to be a prophet. That is the moment, that is the encounter that transformed Ezekiel to take up a new ministry that was not with him before. प्रियो, वह एक मुलाकात थी जिसने यहेजकेल के जीवन की दिशा को रूपांतरित कर दिया। एक याजकीय पद से एक नबूवतीय सेवकाई के अंदर, नबूवतीय पद के अंदर यहेजकेल को स्थानांतरित कर दिया। Nothing can stay dead in the presence of the resurrected Jesus. मृतकों में से जी उठे हुए यीशु के सामने, पुनरुत्थित यीशु के सामने कुछ भी मृतक नहीं रह सकता। Whether even it is your ministry or your own personal life,
this evening, nothing, no dead body can lie before that because of the power and the resurrection of Jesus Christ. प्रियो, यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ के सामने आपकी सेवकाई, आपका जीवन, आपके स्वप्न जो मर चुके हैं, प्रभु कह रहा है कि वो जी उठेंगे और वो नए आयाम में स्थापित हो जाएंगे। Let us cross over to the other side. आओ हम उस पार चले। Hallelujah. हालेलुया। Let us move from what we used to do in our performance, in our things, or in our activities, to something that the Lord is putting this evening upon your heart, to go into that heavenly counsel, to enter into that lively being, encountering with the Son of Man, the resurrected power. That is what he is calling us into. प्रियो, आज की रात पवित्र आत्मा हमें आगाह करता है कुछ रीति रिवाजों को पूरा करने के, कुछ अदाकारिता के उस अवस्था से पवित्र आत्मा हमें निकाल करके एक अगले स्थान पर हमें खड़ा करना चाहता है, जहां पर हम महिमामय बातों को देख सके, परमेश्वर के पुत्र के मुख का निहार हम सके और एक नबूवतीय सेवकाई में आत्मा के गहरे आयाम में मैं और आप चलायमान हो सके। Hallelujah. हालेलुया। There are so many prophets in this generation who are intuitive rather than encountered prophets. आज बहुत सारे भविष्यद्वक्ता लोग हैं जो स्व प्रेरित है, लेकिन आत्मा की मुलाकात को पाकर अगला कदम रखने वाले नबियों की कमी है। And that is the calling that God is placing in our hearts this evening, to be raised into a level where Ezekiel was moved into. और प्रियो, पवित्र आत्मा आज रात को हमें बुला रहा है, जिस प्रकार से यह स्केल के जिंदगी की मुलाकात ने उसके जीवन यात्रा को, जीवन के गंतव्य को बदल दिया, वैसे एक बदलाव के लिए पवित्र आत्मा आज रात को हमें आमंत्रित करता है। There are many things I would like to share, but I want to move forward, skipping a few things, just to make sure that what we said is that let us go to the other side. Like if you are carrying things like there are bones in your life, the life is going to be breathed into it. प्रियो, आओ हम उस पार चले। जब हम उस यात्रा में कदमों को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मान लीजिए आपके पास में हड्डियां है, आप हड्डियां लेकर चल रहे हैं, तो वे हड्डियां जीवित होने जा रही। There are things that God is going to be raised up to fulfill the destiny, like that man who was thrown into an unknown situation, but he came into life. So those kinds of things the Lord wants to promise you this evening. और जिस प्रकार से वो व्यक्ति जिसे मारकर फेंक दिया गया था और वो जीवित हो गया, इस प्रकार की अवस्थाओं के अंदर पवित्र आत्मा मुझे और आपको रूपांतरित करना चाहता है। जिन स्वप्नों को हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, इस मुलाकात के द्वारा वो स्वप्न पुनः सक्रिय हो जाएंगे, नए आयामों में पवित्र आत्मा हमें लिए चलेगा। So the work of the Spirit on the bones, the work of the Spirit on a person who was expected or trained to do something, transferred into a newer level. आप देखिए, परमेश्वर का कार्य उन हड्डियों के ऊपर, परमेश्वर का कार्य उस व्यक्ति के ऊपर जो किसी और बात के लिए प्रशिक्षण पाया हुआ था, जब उसके ऊपर वो कार्य प्रकट हुआ, उसके जीवन का गंतव्य बदल गया, जीवन की मंजिलें बदल गई। I also want you to pick up another encounter experience. One of the fruit of the Spirit is to have faith. और दूसरा एक मुलाकात के अनुभव की ओर मैं आपको ले जाना चाहूंगा। आत्मा के फल में से एक फल विश्वास है। Paul says to Timothy, fight a good fight of faith. और पौलुस तिमुथियुस को, जो उसका निज पुत्र है, उसको कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती तू लड़। And this is also I want to put you in the sense that let us go to the other side. और वह भी उसी पृष्ठभूमि में कि आओ हम उस पार चले, इस कथन को भी मैं ले जाना चाहता हूं। It is also something very similar. It is the work of the Spirit. Many times we don't consider faith as part of the work of the Spirit. We only consider speaking in tongues as the work of the Spirit. और कई बार विश्वास को केवल हम अन्य भाषा तक या कुछ बातों तक सीमित करते हैं, लेकिन यह भी पवित्र आत्मा का कार्य है जो हमें उस पार ले जाने में हमारी मदद करता है। हमें उस प्रकार से विश्वास को समझना है। So when Paul
Paul talks to Timothy, you need to fight a good fight of faith. What is this fight he is talking about? और जब पौलुस तिमुथियुस को कह रहा है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, तो वो कौन सी लड़ाई लड़ने की बात वहां पे कर रहा है? It is a fight in your heart which refuses to quit because there is something inside you that is carrying a persuasion that God cannot lie. और आपके अंदर एक ऐसी प्रवणता जो हार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपके अंदर एक गहरा यकीन है कि प्रभु ने कहा है और वो झूठ नहीं बोलता, वो निसंदेह पूरा होगा। There is a persuasion within your heart that will keep you going, and that is what we are going to talk now. और हमारे अंदर प्रभु की ओर से एक बाध्यता है, एक दबाव है कि हमें हार नहीं मानना है, हमें आगे कदम बढ़ाना है, हमें कूच करना है, और उस बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। In our own life, sometimes we don't go into any fight. We restrict ourselves into certain fights. और हमारे जीवन के अंदर यदि हम देखें, हम इस प्रकार की लड़ाइयों को लड़ने नहीं जा रहे, लेकिन कुछ लड़ाइयों में हम अपने आप को फंसा देते हैं। We are not called to fight all the battles. और सारी लड़ाई लड़ने के लिए हमें नहीं बुलाया गया है। But then the thing that we are trying to talk here is that the spirit that is in birthing within you something will help you to persuade what God has put in your heart and to fight and win the battle. और यहां पर हम जो समझ सकते हैं कि वह आत्मा जो हमारे जीवन के अंदर जन्म पाया है या जो क्रियाशील है, उन बातों को जिन दिशा में परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, उस दिशा में वो हमें प्रेरित करेगा, वो हमें मजबूर करेगा कि हम आगे की ओर बढ़ सके। I want to emphasize this fact that faith is the work of the Spirit. और मैं आपको जोर देकर यह बात बताना चाहूंगा कि विश्वास आत्मा का कार्य है। Many times we don't connect that. We just say that, if you repeat certain words, if you use regular cliches, God is good all the time, things will happen. और कई बार हम उस संबंध को भूल जाते हैं और हम कहते हैं कि आप कुछ अच्छे पदों को आप जब दोहराओगे तो चीजें स्वतः हो जाएगी कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। केवल दोहराने की बात नहीं है यह। Many of us live a Christian life by repeating the cliches that we have learned in the past and try to prove that is our faith. और हम में से बहुत तेरे लोग पुराने दिनों में सीखी हुई कुछ बातों को, कुछ पदों को बार बार दोहराते रहते हैं और हमें लगता है कि हम विश्वास में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी एक गलत सोच में हम जीवन को व्यतीत करते हैं। I want you to tell that something, that what is faith? It is an in-birthed persuasion. It is an in-birthed thing that God's Spirit puts in your life, which will enable you to accomplish and to walk into things which God has placed before you. प्रियो, विश्वास पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर स्थापित मानो एक बीज है, एक दबाव है जो ईश्वरीय कार्य योजना की पूर्ति के लिए आपको प्रोत्साहित करता रहेगा, आपको प्रेरित करता रहेगा, आपको आगे बढ़ाता रहेगा। If you look at some of the great servants of God, and if you ask them what is making them, what energy is within them to run so much and to do great things for God. और आप यदि कई प्रभु के दासों के जीवन को आप देखोगे कि उनके अंदर वह कौन सा उत्साह है, वह कौन सा जोश है जो उन्हें प्रभु के लिए दौड़ा रहा है और प्रभु के लिए कार्यों को अंजाम करवाने के लिए वो बात प्रेरित करवाता है। It would say that there is an in-birth persuasion which is done by the Holy Spirit, which triggers something to do within us. And nobody need to push them. Nobody need to say, hallelujah, raise your hands and move. It is because there is something birth within them. और उनके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ नई बातों को उत्पन्न किया गया है और उसके कारण किसी बाह्य उत्तेजना या बाह्य व्यक्ति के दबाव के कारण नहीं, उसके बोलने के कारण नहीं, लेकिन स्व प्रेरित होकर अंदर से ही आप प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए कदमों को आगे बढ़ाते चले जाते हो। Hallelujah. Within the limited time, I would like to quickly look at Abraham's story, who is considered as the father of faith.
और अब्राहम के जीवन की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, जिसे विश्वास का पितामह कहा जाता है। I will not take you to the regular chapter of chapter 12, but I will start with chapter 11. That is where some important thing that we have missed many times to see that. और उत्पत्ति 12वें अध्याय में नहीं, लेकिन 11वें अध्याय में मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जो वहां पर है हम उसको भूल जाते हैं। You know, in that chapter 11, verses 27 to 32, it talks about the story of Terah. और 11वें अध्याय उसके 27 से 32 तक 13 के जीवन की घटनाक्रम को हम देखते हैं। And there is an amazing description which is given. I believe that 27 to 32 is the most crucial chapters in the history of the world, which transformed because somebody stepped out of a situation which was, they said that they will not stay back because they heard the word of God. और 27 से लेकर 32 तक के जो पदभाग है, मनुष्य इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पदभाग है, क्योंकि किसी ने निकलने के लिए, कूच करने के लिए अपने आप को सौंपा और उसने कदमों को बाहर रखा। It is a story of telling barrenness no to barrenness and to move into fruitfulness. और यह वो घटनाक्रम है जहां पर बांझपन को ना बोलते हुए फलवंतता की ओर कदम बढ़ाया जाता है। You know, the first barren woman is Sarah in the history of the world till that time. और वचन के इतिहास के अंदर 11वें अध्याय में जब हम आते हैं, पहली स्त्री जो बांझ थी वो सारा थी। And there were other 5, maybe total 6 barren women in the story of Bible, and then the 7th one was the virgin on which the Holy Spirit, came and Jesus was brought out. और वचन के इतिहास के अंदर लगभग 6 ऐसे स्त्रियों के बारे में बताया गया है जो बांझ थी, जिनके पास में संतानोत्पत्ति की क्षमता नहीं थी, और 7वीं स्त्री वह कुंवारी थी जिसके द्वारा उद्धारकर्ता इस संसार में जन्म लेता है। There, Rebecca, Rachel, Samson's mother, Samuel's mother, Hannah, and Elizabeth were the 6 people before Mary. और हम देखते हैं सारा, राहेल, sir, can you just repeat the name? Rebecca, Rachel, Samson's mother. रेबेका, राहेल, और हम देखते हैं कि शिमशोन की माता हन्ना Elizabeth. और इलिशिबा। 7th one is very important. और 7वां महत्वपूर्ण है। And the response of, that's how the embedding and imbirthing of the Spirit happens. And the response that Mary gives is that, let it happen to me as you wish, Lord. और देखिए, पवित्र आत्मा के साथ में जो सहभागिता, जो प्रति उत्तर हम देते हैं वह महत्वपूर्ण है। मरियम क्या कहती है? मैं तेरी दासी, और जैसा तू कह रहा वैसा मेरे साथ में होने पाए। So let me take you to the story of Terah rather than the story of Abraham. अब्राहम की जगह में 13 के जीवन की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। If you read that story, you will, it will be very interesting, the statement in verse 28. While his father Terah was still alive, Haran died in Ur of Chaldeans in the land of his birth. और हम देखते हैं 28वें पद के अंदर, हारान अपने पिता के सामने ही, अर्थात 13 के सामने ही कसदियों के ऊर नामक नगर में जो उनकी जन्मभूमि थी मर गया। This has never happened in the 20 generations that are mentioned in the scripture, that a son died before the father died. और आप देखिए, उसके पहले 20 पीढ़ियों का वर्णन किया गया है, लेकिन किसी भी पीढ़ी में हम एक ऐसे घटना को नहीं देखते जब पुत्र पिता के पहले मर रहा है। That is the first time in the history, in the environment, in the society, in the culture they were living. और उन जन समुदायों में, उनके इतिहास में, उनकी संस्कृति में पहली बार यह हो रहा था कि किसी पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो रही थी। And it is also true that Terah's son Abraham
doesn't have a son, a father who doesn't have a son. और आप देखिए तेरह का दूसरा बेटा अब्राहम, लेकिन अब्राहम के पुत्र नहीं है, पुत्रहीन अब्राहम। And is again the third thing in that family is that they have a daughter Sarah who is barren. और तीसरी बात, सारा जो उनकी बहू थी वो बांझ थी। You know, he wants to move from that painful environment, and imagine this is the first historical incident, a family, a 3 generation going through something so significant that they cannot face the pain in that situation. देखिए 3 पीढ़ियों का समागम हम वहां देखते हैं, जो अत्यधिक पीड़ा से, अत्यधिक दर्द से, विरह वेदना से जूझ रहे थे, और उस दर्द भरी अवस्था से वो आगे कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। Many times I have asked this question, why did Terah started the journey and then only Abraham was considered as, listening to God? और कई बार मैंने एक सवाल पूछा, तेरह ने यात्रा आरंभ की, लेकिन अब्राहम को ही क्यों उसका सेहरा ओढ़ाया जाता है विश्वास का पिता होने का? The reason is when Terah left the land of Chaldeans, it was not because he encountered God, but because of his context. His situation was so painful, he need to move away from it to escape from it. और उसका कारण यह है, जब कसदियों के देश से तेरह उस देश को छोड़कर निकला, एक मुलाकात के कारण नहीं, लेकिन उस देश में जो जख्म उसने सहे, जो पीड़ा उसने सही, उस दर्द से बचने के लिए वह स्वयं वहां से उस देश को छोड़कर निकला था। He tried to figure out an escape from the situation, and we read in verse 32, and he lived 205 years, but he died in Haran in the middle of the journey. और हम देखते हैं उस नकारात्मक परिस्थिति से जान बचाने के लिए वह वहां से बाहर निकला था, लेकिन मार्ग के मध्य में हारान में 205 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। 32वें पद में हम देख सकते हैं। It's a sad story, but we believe that if he had listened to something else, or I'm so glad that Abraham stepped into the situation and started listening to God who encountered with him. और हम देखते हैं उन परिस्थिति में अब्राहम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, प्रभु की एक मुलाकात को पाने के लिए अब्राहम ने अपने आप को सौंप दिया। One of the most important things that we need to learn in the life of faith, again, the spirit in birth persuasion, is that there are profound truths sometimes you see as opposites. और प्रियो, एक महत्वपूर्ण बात है, जो पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर जन्म लेता है और उससे प्रेरित करता है, तो उसको समझने के लिए कुछ गहरी विरोधाभास की स्थितियां भी वहां पर कई बार उत्पन्न हो जाती है। On the one side you will have barrenness, and on the other side you will have fruitfulness. एक तरफ बांझपन, दूसरी तरफ फलवंतता। In our lives we carry both. हमारे जीवन में हम इन दोनों को लेकर चलते हैं। Today evening there are people listening to me sitting with barrenness. आज बांझपन की अवस्था में, फलहीनता की अवस्था में लोग मुझे सुन रहे हैं। But when God says go forth, listen to that voice this evening. लेकिन जब प्रभु की आत्मा आपसे कहती है आगे कदम बढ़ा, आगे कदम बढ़ा, प्रभु की उस आवाज पर आप हां बोलिए। Because it is from that barrenness the birth happens. क्योंकि उस बांझपन से एक जन्म होता है। Hallelujah. This is new for us as people of God to be received, that the Spirit of the Lord want to birth within you in the barrenness that you consider limiting you from moving in God.
प्रियो, उस बांझपन की अवस्था में अंदर जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है वहां पर एक फलवंतता की चाहत रखते हुए प्रभु की आवाज को सुनकर हम कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। Abraham didn't worry about what happened to his father. He didn't worry about the environment in which he left the place, but he was willing to be alone, taking that step of faith in moving forward so that God can start working in his life. प्रियो, अब्राहम ने उसके पुराने उन दर्द भरे हालातों के अंदर अपने आप को रोका नहीं, वो बांझपन उसे रोक नहीं पाया। प्रभु की आवाज को सुनकर वो कदमों को बढ़ाने के लिए वह तैयार हो गया, एक अगले आयाम में उसने प्रवेश कर लिया। Walking in faith is an important thing that the Spirit will birth in you. And I pray that this evening the Spirit will birth within us something greater so that we can believe in for something new from the Lord. प्रियो, विश्वास में कदम रखना आत्मा के कार्य के द्वारा होता है, और आज रात में विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आपके जीवनों के अंदर विश्वास के द्वारा कुछ कदमों को बढ़ाने के लिए, कुछ नई बातों को उत्पन्न करने के लिए पवित्र आत्मा आपको प्रोत्साहित करेगा। Isaiah chapter 51 verse 1, it talks about, look at our father Abraham. God dug you out of a pit, pulled you out of a rocky quarry. That is the history. That is our inheritance. We need to pull it from Abraham, the walk of faith that imbued the birth, the persuasion that God is placing within us. और यशायाह उसके 51वें अध्याय में हम वहां लिखते हैं कि वहां की जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अब्राहम अपने जीवन के उस बांझपन की हालात के अंदर, उस खालीपन की हालात के अंदर प्रभु पे भरोसा रखकर आत्मा की प्रेरणा में वह कदमों को आगे बढ़ाता है। Let us cross over to the other side. आओ हम उस पार चले, In the walking of faith. विश्वास के यात्रा में, And that comes only by the inbirthing of the Holy Spirit. और वह पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म या हमारे अंदर नया कार्य उत्पन्न करने के द्वारा होता है। An encounter that is different in Abraham's life, which was not in Terah's life. And I pray that this evening you will pick up that encounter like that you see in Abraham. अब्राहम के जीवन में जो ईश्वरीय मुलाकात थी, तेरह के जीवन में वो नहीं थी। प्रियो, आज रात मेरी प्रार्थना है आपके जीवनों में भी अब्राहम के समान एक ईश्वरीय मुलाकात के लिए इन दिनों में आप तैयार हो जाए। Encounter needs a different spirit. Encounter needs a different anointing from the Lord. Encounter comes from the Spirit of God. प्रियो, वह मुलाकात वो परमेश्वर की ओर से आती है, पवित्र आत्मा के चलायमान होने के द्वारा, सक्रियता के द्वारा मेरे और आपके जीवनों में आती है। Encounter, take you away from figuring out of things. Encounter will take you, to a new level where you can carry the poles. Encounter will transform your, what is being trained to what is being released. Encounter will take you to walk in a new level of faith. प्रियो, यह जो मुलाकात आपके जीवन में जिन बातों के लिए आपको अभ्यस्त किया गया है या जिन बातों से आप प्रशिक्षित है, उन रोजमर्रा के उन चीजों के अंदर से, उस दिनचर्या के अंदर से पवित्र आत्मा एक नए स्थान के अंदर, एक नए आयाम में मुझे और आपको स्थापित करेगा, जहां पर उसकी महिमा को हम समझ पाएंगे और हम उसके साथ में चलायमान होने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। December is a season of his coming. और यह दिसंबर उसके आगमन का मौसम है, A fresh coming. एक नया आगमन। And in this fresh coming, you will be poured out. The Spirit of the Lord will be poured out in a different way, as Joel was promised. And it will be completely transforming yourself, not only on the material realm, but only on the spiritual realm, where the church will be moving into a new realm. प्रियो, इस माहौल में जैसे योएल ने कहा था, वैसा आत्मा का उंडेला जाना होगा एक नए स्तर में, एक नए आयाम में। न केवल आप लेकिन कलीसिया को पवित्र आत्मा रूपांतरित करना चाहता है, नए आयाम में कलीसिया को प्रभु ले जाना चाहता है। The sign of the last days is not the earthquake and the bad things that are happening, but the good thing that the Spirit is bringing through the power that He has promised for us.
जो अंत के दिन भूकंप या भूडोल की बातें नहीं, अकाल की बातें नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा नया कार्य, नया चरण, एक ताजा कार्य वह होने जा रहा है। हमें उसकी बाट जो होना है। Let us move to the other side. आओ हम उस पार चले। And may God bless you with this verse that as we wait upon the Lord for greater things to come upon our lives. और प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करने पाए, प्रभु के अद्भुत कार्यों की हम बाट जो होते रहे। Thank you for giving me such an opportunity. It's such a joy to be part of what the Lord is doing in each of your life and the ministries in Surat and Dungarpur, as well as other pastors in Nimbada and other places where the Lord has placed you. और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेष करके इन सेवकाइयों को जो प्रभु सूरत के अंदर, डूंगरपुर में, निम्बाहेड़ा में, भिलवाड़ा में, अन्य स्थानों में जो प्रभु कर रहा है, उसका भाग बनने के लिए प्रभु ने मदद किया।